میں خواہش ظاہر کروں گا ڈاکٹر اظہر سراج قاضی صاحب سے کہ وہ اس مجلس کی صدارت کریں، اور ان کی اجازت سے پہلے تو وہ قبول کر لیں اور پھر ان کی اجازت سے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ذرا نوازی ہے، آپ کی اجازت ہے؟ محبت آپ کی۔ یہ تو قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ تو چونکہ وقت پورا عبدالودود انصاری صاحب کو دینا ہے، اس لیے بہت مختصر میں ہم ان کا تعارف کرا دیں۔ عبدالودود انصاری صاحب سائنسی ادیب ہیں، اور یقیناً ہم میں سے بیشتر لوگ اس بات سے واقف ہوں گے اور ان سے پرسنلی بھی ملاقات ہوئی ہوگی اور شناسا ہوں گے، مگر کچھ لوگوں کے لیے ان کا تعارف ضروری ہے۔ عبدالودود انصاری صاحب کے آباء و اجداد بہار سے تعلق رکھتے تھے، مگر بنگال کی سرزمین انہیں راس آئی۔ ان کا تعلق ریاضی سے ہے، جس میں انہوں نے MSc کیا اور پھر بعد میں B.Ed کے بعد پیشہ اسی مناسبت سے معلم ریاضی انتخاب کیا، اور حال ہی میں بطور پرنسپل ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سبکدوش ہو کر کلکتہ میں مقیم ہے۔ ریاضی جیسے خشک سبجیکٹ سے وابستگی کے باوجود ان کی دلچسپی اردو ادب، بالخصوص سائنسی ادب، اور اس میں بھی تخصص بچوں کا سائنسی ادب حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ موصوف نے 300 سے زائد مضامین رقم کیے ہیں اور کم از کم 2 درجن رسالوں اور اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔ مجھے ان کی مضمون نگاری پر رشک آتا ہے۔ عبدالودود انصاری صاحب کو میں ماہنامہ اردو سائنس کے حوالے سے جانتا ہوں اور انہیں پڑھتا رہا ہوں۔ ماہنامہ سائنس کی بنیاد 1994 میں یعنی 1994 میں رکھی گئی، اور اس کے لیے عبدالودود صاحب نے 1995 سے لکھنا شروع کر دیا، اور 2018 تک مستقل ماہنامہ سائنس میں لکھتے رہے، اور تب تک 108 مضامین شائع ان کے ماہنامہ سائنس میں ہوئے۔ گویا ماہنامہ کے معماروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تقریباً 33 سال سے لکھ رہے ہیں اور ان کو پڑھا جا رہا ہے، یعنی ایک پیڑھی ان کے مضامین پڑھ کر جوان ہو گئی۔ میں گزارش کروں گا عبدالودود انصاری صاحب سے کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ عبدالودود انصاری صاحب۔ انمیوٹ کر لیجئے، انمیوٹ کر لیجئے، میوٹ کیا ہوا ہے، انمیوٹ کر لیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ حضرات السلام علیکم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ ادا کروں کہ اللہ نے آپ جیسی شخصیتوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا۔ اس کے بعد انجمن فروغ سائنس کے تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے آج مجھے اپنے سامنے بیٹھا کر کچھ کہنے اور سننے کا موقع فراہم کیا۔ حضرات گرامی،
मेरी हैसियत शागिर्द जैसी है, आप हजरात की हैसियत टीचर जैसी है। आज का प्रोग्राम एक तालिब इल्म अपने उस्ताद या टीचर के सामने बात करेगा, जिससे हो सकता है कि उस्ताद को भी मालूमात हासिल हो और तालिब इल्म को कोई मालूमात हासिल हो जाए। बहरकैफ हम तो फर्दन शुक्रिया अदा करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी 2-4 लोगों का नाम दिए बगैर मैं बिल्कुल नहीं रह सकता, जिसमें नाम में सबसे पहला नाम डॉक्टर असलम परवेज साहब का है कि जिन्होंने ही मुझे मैंने पकड़ करके बोलिए या जिस तरह बोलिए ये पॉपुलर साइंस के मैदान में ला करके खड़ा किया जाता है। क्योंकि मेरा पहला पॉपुलर साइंस का जो मजमून छपा वो 1995 में पहला मजमून महानामा साइंसी में छपा जाता है। हज़रात गिरामी, पॉपुलर साइंस के मजमून लिखने से कबल मैं यकीनन 10 निसाबी किताबों का मैं मुसन्निफ था। वो किताबें हमारी दर्जा अव्वल था दर्जा दहम फिजिकल साइंस की किताबें थी। इसमें 2 किताबें फिजिकल साइंस दर्जा दहम मनहुम ये मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी ने शाया किया था। इन दोनों किताबों को तकरीबन कमोबेश 10वां एडिशन शाया हुए और कई साल तक मगरबी बंगाल के हाई स्कूल के निसाब में शामिल हाल नहीं। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूँ, मैं तो मजाक से इनको मैंने डॉक्टर मोहित शम्स को पीर बोलता हूँ कि पीर मुर्शिद हमारे हैं, अल्लाह है मजाक। इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बहुत ही लुत्फ साथी हैं। साथी तो बोलना भी मुनासिब नहीं, मैंने लुत्फ बहुत सदाबहार बड़े भाई हैं। इनसे अक्सर गुफ्तगू मैंने आप बगैर मैंने मुस्कुराए हुए बगैर हंस के नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने छोटों पर हिम्मत अफजाई करना, छोटों को शफ़क़त करना भरपूर जानते हैं। इसके बाद एक शख्स और भी मैंने आज के प्रोग्राम में है, जिनका तक़द्दुस एहतराम का अगर मैंने इजहार न करूँ ये हक़ तलफ़ी होगी, कि वो हैं डॉक्टर ज़फ़र हसन साहब, जिनसे हमारी मुलाकात रूबरू कई बार हुई है। और उसने भी एक छोटे भाई की तरह जब भी उन्होंने हम उनसे मुलाकात उन दोनों में हुई, उन्होंने बिल्कुल छोटे भाई की तरह से मुझे गले लगाया और इनके बिहेवियर को देख के, उनके एक्शन को देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद फातिमा ज़ोहरा जो हमारी बहन की तरह हैं, औरंगाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं, इनके भी बहुत अच्छे एहसानात हमारे ऊपर हैं। बहरकैफ इसके सिवा जो लोग भी आज इस पर मुशरिक हैं, हम तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने आज मुझे मदऊ किया और दिल की बात थोड़ा कहने का मौका अता फरमाया। देखिए, अब उन्वान की तरफ पलटता हूँ। आज का जो उन्वान है बच्चों का साइंसी अदब सूरत हाल और पेश रफ्त, इस उन्वान पे हमारी गुफ्तगू होगी। कुछ कहने सुनने के बाद फिर आखिर में हम लोग ऐसा मौका भी फराहम करेंगे इसमें कुछ सवालात होंगे, जवाबात होंगे, इससे आगे बढ़ने का हम लोग का मौका मिलेगा। देखिए, खुद सताई ऐब है, अपने बारे में अगर तारीफ करना बेजा है, लेकिन इत्तवान अर्ज करना जरूरी समझता हूँ कि मेरी चंद किताबें जो मनसे सहूद पर बच्चों के साइंसी अतफाल अदब के सिलसिले से आई हैं, थोड़ा सा ज़िम्नन उनका जिक्र करना जरूरी है ताकि बाद की गुफ्तगू में मैं उन तमाम किताबों का हवाला दे सकूँ। देखिए, मेरी किताब सबसे पहले यक मौजूई क्विज, उर्दू में यक मौजूई क्विज पर शाया हुई। 1 नंबर है जानवर क्विज, 2 नंबर है परिंदा क्विज, 3 नंबर है कीड़ा क्विज, 4 नंबर है सांप क्विज, 5 नंबर है फलक क्विज। और किसी वजह से मछली क्विज का मसवदा मैंने तैयार होने के बाद भी छप न सके, तो मैं दावे के साथ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लोग कहने वाले कहते हैं कि उर्दू में एक मौजूद साइंसी क्विज पर अल्हम्दुलिल्लाह खाक साल की पहली किताबें थी जाती। तो एक साइंस की एक सिंह जो आप क्विज कर सकते हैं, उन पर कमोबेश हमारी 5 किताबें हैं और उन तमाम किताबों में कमोबेश हर एक किताबें 500 सवालात हैं जाती। उसके बाद आइए आगे बढ़िए। मेरी एक किताब साइंसी मकालमा निगारी पे बातों बातों में साइंस एक किताब शाया हुई, जिसे कौमी कौंसिल बराए फरोग़ ज़बान उर्दू दिल्ली ने शाया किया। ये किताब में तकरीबन 18 मज़ामीन हैं
जो बच्चों के साथ मुकालमा निगारी के तहत बच्चों को साइंसी मालूमात फराहम की गई है। तीसरी मेरी एक किताब जो है वो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये जानते होंगे, आओ साइंसी खत लिखें, और दूसरी किताब है आओ साइंसी खत पढ़ें। इन दोनों को किताबों को भी कौमी कौंसिल बराए फरोग ज़बान उर्दू नई दिल्ली ने शाये की। आप हजरात को पता भी होगा, और थोड़ा सा मैं कहना मुनासिब समझता हूँ क्योंकि आप सब अपने हैं, इस अपनों के सामने अपने बारे में कहना कोई मायूब नहीं, ये बात है, क्योंकि आप में बड़े भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हिंदुस्तान के तारीख उठाकर देखेंगे तो मकतूब निगारी के जरिए साइंसी मालूमात फराहम करने वाली किताब मेरी अव्वलीन किताब है, आओ साइंसी खत लिखें और आओ साइंसी खत पढ़ें। इन दोनों किताबों में कम और बेश हर एक किताब में 30-30 खुतूत शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुतूत ऐसे हैं कि इसका पेश लफ्ज़, हर एक खत का पेश लफ्ज़ अल्लाह ने बिल्कुल जुदा लिखवा दिया है। आप किसी भी खत का वो 60 खुतूत कम और बेश के अंदर आप पेश लफ्ज़ का एक लफ्ज़ एक जुमला भी आप लिख नहीं पाएंगे। उसके बाद खत लिखा है, खत के जरिए आपकी साइंसी उन्वानात के जरिए मालूमात मैंने फराहम करने की कोशिश की। यकीनन अल्लाह का कदम आप हज़रात की दुआओं का नतीजा है कि अल्लाह ने ऐसी किताब लिखवा दिया जिससे एक साइंस के एक सिंफ पे तवज्जो दी गई है जाकर। उसके बाद मैं बताऊं आपको कि मेरे 40 मजामीन साइंसी मजामीन का एक मजमूआ बनाम औराक साइंस, इसको भी कौमी कौंसिल नई दिल्ली ने शाये किया। इसके अंदर मेरे 40 मजामीन शामिल हैं। इसमें बाज़ मजामीन तो ऐसे हैं जो बड़ा तहकीकी है, वो किसी दूसरी नशिस्त में कभी मौका मिला तो इससे बातें होंगी। उसके बाद मेरे साइंसी मजमूआ की 2 किताबें और है, एक है तरक्की के जीने साइंस और टेक्नोलॉजी, और दूसरी किताब है आओ साइंस पढ़ो और आगे बढ़ो। ये तमाम किताबों जो मैंने आपके सामने मैंने बताया इन किताबों के बारे में कि तमाम किताबें बच्चों के अतफाल अदब के सिलसिले से ही हैं, किताब है, तमाम मजामीन बच्चों के सिलसिले हैं। एक किताब और भी बच्चों के साइंसी अदब पे है, मुसलमान साइंसदानों की खिदमत। इसके अंदर भी 25 मुसलमान साइंस और कदीम मुसलमानों की खिदमत को उजागर किया गया। ये तकरीबन यही 17-18 किताबें हमारी अतफाल अदब के सिलसिले से है, और बाकिया जो किताबें हैं वो मैंने वो बड़ों के लिए है, वो तालीम पर भी है, निसाबी किताबें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबें कम और बेश 32 हद तक साया हो चुकी हैं जाकर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए हम अपना उन्वान की तरफ बढ़ते हैं, बच्चों का साइंसी अदब और सूरत हाल। बच्चों का साइंसी अदब, सूरत हाल और पेशी अदब। देखिए दो लफ्ज है, एक है सूरत हाल और एक है पेश सिफत। तो पहले कुछ बातें सूरत हाल के सिलसिले से हो जाए, उसके बाद पेश सिफत पे अपनी रोशनी डालूंगा जाकर। देखिए सूरत हाल की बात जहाँ तक की जाए तो सूरत हाल तो सबके सामने है कि सब लोग ये कहते नजर आएंगे कि बच्चों का अदब पर लिखना बड़ा बच्चों का खेल नहीं है, या बच्चों का अदब पर जो ना बहुत बड़ी किल्लत है, या बच्चों की अदब बहुत ही कम है, सब लोग मैंने कहते हुए नजर आते हैं। और हकीकत में ऐसा है भी, जब भी कोई साहिब कलम इस उन्वान से मजमून मैंने लिखता है बच्चों का अदब पर, तो सिवाय अल्लामा इकबाल और हाली और प्रजा इस्माइल मिर्ची, ये 5 नाम को गिनवा करके वो अपने मजमून को आगे बढ़ा के रो करके लिखना शुरू करेगा, रोने पर मजमून को खत्म करेगा जाकर। ये सूरत आज सबको पता है। उसमें किए जाए कि बच्चों का साइंसी अदब की बात की जाए तो इस पर और मातम करने की सबको दिल चाहेगा, वाकई मतलब मातम करने को दिल चाहता है भी ये जाके। इस उन्वान पर हिंदुस्तानी सतह पर देखा जाए तो हम समझते हैं कि 4-5 आदमी ही मुस्तकिल कलमकारों में हैं, वरना बिल्कुल इसमें खला ही खला है। इन नामों में सबसे पहले नाम जो दिया जा सकता है वह क़िबला मुहतरमुल मकाम आली जनाब डॉक्टर शमसुल इस्लाम फारूकी साहब का, जिन्होंने बच्चों का साइंस अदब पर बहुत ही काम किया है और उनकी बहुत खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछली नशिस्त में आप उनके रूबरू होकर उनके खिदमत उनके बारे में जानकारी आपने हासिल कर ली है। एक नंबर पर नाम दिया जा सकता है तो क़िबला दामत बरकातहुम जनाब डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब का फारूकी का नाम दिया जा सकता है। 2 नंबर पर नाम दिया जा सकता है तो यकीनन डॉक्टर मोहम्मद खलील साबिक मुदीर मानामा साइंस का नाम दिया जा साइंस की दुनिया का नाम दिया जा सकता है, जिन्होंने काफ़ी मजामिन बच्चों पर लिखे। लेकिन हाँ, डॉक्टर शमसुल इस्लाम फारूकी और डॉक्टर मोहम्मद खलील के मजामिन में फ़र्क ये है
डॉक्टर मैंने ये देखिए तकाबुली जायजा नहीं है, ये जो मैंने पस मंजर है मैं पस मंजर पेश करना चाहता हूँ मैं जाकर। डॉक्टर खलील साहब के मजामीन में कंटेंट ही कंटेंट है, मतलब मवाद ही मवाद है जाकर, लेकिन डॉक्टर शमसुल इस्लाम फारूकी ने उन मवाद को साइंसी पैदहन में पॉपुलर साइंसी मैंने पैदहन पहना कर उन्हें बच्चों के सामने पेश किया है जाके, जो बहुत बड़ी बात है जाके। बस यही यही साइंसी अदब का मैंने तारीफ है। मेरी जाती अगर अगर हमसे पूछे कि बच्चों का साइंसी अदब क्या है, तो बस 4-5 लफ्जों में या 1-1.5 जुमलों में तारीफ बताई जा सकती है। वो ये है कि बच्चों की नफ्सियात और उनकी दिलचस्पी के मद्देनजर आम फहम जबान में बच्चों को मालूमात करने का नाम साइंसी उर्दू साइंसी अदब है। आपका माइक ऑन करिए, आपका माइक ऑन करिए। खुर्शीद इकबाल साहब माइक ऑन करिए। खुर्शीद इकबाल साहब माइक म्यूट हो गया गालिबन। जी वो म्यूट हो गए खुर्शीद इकबाल साहब। हेलो खुर्शीद साहब आप सुन सकते हैं? उनका माइक म्यूट हो गया है, आप सही फरमा रहे हैं। खुर्शीद साहब आपका माइक म्यूट हो गया था। अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा तो मैं कह रहा था कि बच्चों के साइंसी अदब के बारे में अगर बताया जाए तो पूरे हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे अव्वल नाम है डॉक्टर शमसुल इस्लाम फारूकी का। ये आज मैं जो इससे खबर जो मैंने रोशनी डाली थी उनको आप हज़ार सुन चुके हैं? नहीं दोहराइए ना थोड़ा सा। अच्छा हाँ मैं दोहराता हूँ थोड़ा सा दोहराइए। हिंदुस्तान में बच्चों के साइंसी अदब के सिलसिले से अगर बात की जाए तो यकीनन सरे फहरिस्त जो नाम आता है वो मोहतरमुल मकाम आली जनाब क़िबला डॉक्टर शमसुल इस्लाम फारूकी का नाम आता है, जिन्होंने बच्चों का साइंसी अदब पे खूब लिखा, भरपूर लिखा उन्होंने जाकर। और दूसरा नाम जो नजर आता है वो डॉक्टर मोहम्मद खलील, साबिक एडिटर या साबिक मुदीर साइंस की दुनिया का नाम आता है। इन्होंने भी बच्चों के साइंसी अदब पर अच्छा खासा मज़ामीन इन्होंने पेश किया जाए। लेकिन डॉक्टर शमसुल इस्लाम फारूकी के मज़ामीन और डॉक्टर खलील के मज़ामीन में फ़र्क ये है कि डॉक्टर शमसुल इस्लाम फारूकी ने साइंसी पॉपुलर साइंस के मिजाज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने मज़ामीन लिखा है या किताबें तरतीब दी है। लेकिन डॉक्टर ये खलील साहब जो साइंसी मज़ामीन बच्चों का है उन्हें सिर्फ मालूमात बराह-ए-रास्त मालूमात पेश की गई है। देखिए हमको किसी से मुआवजा करना जरूरी नहीं है, जो सूरत हाल है मैं उसको बयान करना चाहता हूँ जाकर। उसका मैं बता रहा था कि अगर बच्चों के साइंसी अदब के तारीफ को अगर हमसे पूछे तो मेरे नज़र में सिर्फ 1.5 सतर में ये तारीफ मुकम्मल हो जाएगी। वो ये है कि बच्चों की नफ्सियात और दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए आम फहम जबान में साइंसी मालूमात पेश करने का नाम बच्चों का साइंसी अदब है जाकर। ये चार बातें जिस मुसन्निफ के कलम से उन्हें निकलेंगी वो यकीनन एक कामयाब बच्चों का साइंसी अदब कहलाएगा जाकर। आप ये बताइए कि इस 4 कंडीशन शराइत को पूरा करने के लिए आप उनको आसानी से पूरा किया जा सकता है। बहर कैफियत तो साइंसी अदब का सूरत हाल है। तो आप तीसरा नाम अगर साइंसी अदब में अगर लिया जाएगा बच्चों के साइंसी अदब में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल करम से आप मुखलिसों के दुआओं से खाकसार का नाम दिया जा सकता है अब्दुल वदूद अंसारी का, कि जिसने भी बच्चों के साइंसी पॉपुलर साइंसी अदब पे इन सिफात को मद्देनजर रखते हुए मज़ामीन या किताबें तरतीब दी है जाकर। उसके बाद चंद हम और भी हैं जिसको नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। अभी अंजुमन फरोग साइंस से जुड़ी हुई
मोहतरमा जो हैं हैदराबाद की, क्या मोहतरमा है, मिस्टर खान शायद मौजूद होंगे यहाँ पर। बहन आपका क्या नाम है? सरताज बानो। शाहताज खान। मैं हाँ, मेरी बहन शाहताज खान है। जी जी। तो क्या मौजूद हैं आप अभी आप? जी जी मैं मौजूद हूँ। अच्छा, मैं अच्छा हूँ बहन, अच्छा हूँ। तो भैया आपका भी नाम इसलिए दूंगा कि देखिए मुबालगा का कायल नहीं, लेकिन हकीकत के इजहार करने में बुखलिस पे काम लेने चाहता हूँ। आपकी किताब जो मिली, आपने जिस नेहत से आपने लिखना शुरू किया है, अगर लिखती रही इंशाअल्लाह बच्चों, उर्दू बच्चों के साइंसी अदब के खिलाफ बहुत हद तक आप पूछ कर पाएंगे। इस शाहताज खान से मेरी गुजारिश है कि अपने कलम को जारी रखें और तेजी लाएं, और बिल्कुल लिखना है जाकर। उसके बाद एक नाम जुनैद शेख का भी लिया जा सकता है, जिन्होंने भी कोशिश की है कि बच्चों का अदब पर कुछ लिख लिए, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी धीमी है कि उतनी धीमी रफ्तार से बात बनने वाली नहीं है। जाकर शोलापुर के हैं, उनको चाहिए कि और भी तेजी के साथ जो है ना वो अपने मजामे लिखे जाकर। ये तो चंद नाम मैंने गिनवा दिया। अब ये है कि सबसे पहले बात तो जान लीजिए कि बच्चों का साइंसी अदब क्यों जरूरी है। अब अहम सवाल ये है कि बच्चों का साइंसी अदब क्यों जरूरी है। देखिए, हम सब जानते हैं कि बच्चे किसी भी मुल्क व कौम का मुस्तकबिल होते हैं। ये सब कोई बोलता है, सब जानते हैं कि बच्चों पर भी है ना मुल्क का इन्हिसार है, बच्चों का कौम का इन्हिसार है। तो अब कौम का जब इन्हिसार है और मुल्क का जब इन्हिसार है, तो देखना ये होगा कि कौम मुल्क किस दौर से गुजर रहा है जाकर। तो जाहिर सी बात है, इसका जवाब ये होगा कि हमारी कौम और हमारा मुल्क साइंसी दौर से गुजर रहा है। जब साइंसी दौर से गुजर रहा है तो बच्चों को साइंस पढ़ाना, साइंस सिखाना, साइंस समझाना और साइंस के तहत रग़बत दिलानी कितनी जरूरी, इसका अंदाजा हर आम और खास आदमी कर ले कि बच्चों का साइंसी अदब कितने जरूरी जाए। देखिए, अब वो दौर खत्म हो गया जाकर कि बच्चों को ये बताया जाए कि बेटा चांद पर एक गुड़िया जाती है, वो चरखा काट रही है। आज का बच्चा यकीन नहीं करेगा, तो फौरन बता दिया किसी साइंसदान ने तो आज तक बताया ही नहीं ये बात, आप कैसे बता दें। ना ही आज का दौर राजा रानी और भूत प्रेत और परियों की कहानी सुनने का टाइम है जाकर के, बल्कि चालाक आदमी वो है कि बच्चा जिससे मुंसलिक है, चाहे वो मोबाइल से हो या इंटरनेट से हो या लैपटॉप से हो या टैबलेट से हो, जब इससे मुंसलिक है और ये तमाम चीजें आज के बच्चों के लिए नागुज़ीर हो गई हैं, तो हमारा भी तकाजा है कि उन्हीं चीजों के जरिए उनको साइंसी मालूमात फराहम करें ताकि वो आसानी से ले सकें, दिलचस्पी से ले सकें और हमारा मकसद भी पूरा हो जाए। देखिए, एक बात और मैं बता दूं कि बहुत मशहूर नज़्म है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जनाब, आज का बच्चा ये मैंने पोएम को ठुकरा देगा, बल्कि वो कहेगा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नो आई वंडर व्हाट यू आर। इससे ऑलरेडी जानता है वो, मैंने टीवी पे कई मैंने प्रोग्राम देखा है, वो मैंने खला का प्रोग्राम देखा है जाकर के, तो उसको पता है कि सितारा कैसे चमकता है, सैयारा की रोशनी कैसी होती है, उसके लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है जाकर। लिहाजा हम जो मैंने राइटर्स हैं और हम जो मुसन्निफीन हैं, साइंस के लोग हैं, जो साइंसी मज़ामिन लिखते हैं, उनको मैंने बुनियादी तौर पर बच्चों का साइंसी मज़ामिन की तरफ बहुत ज़्यादा और बहुत ही मैंने तेज़ी के साथ रग़बत देनी होगी, ताकि हमारा उर्दू बच्चा भी ना गैर मैंने बिरादर वतन के बच्चों के साथ शाना बशाना चल सके। बल्कि एक शायर का तो शेर है कि तुझको तेरे कलम की कसम साहिबे कलम, तुझको तेरे कलम की कसम साहिबे कलम, बच्चों को फिक्र दे खुश फहमियां ना दे जाते। ये फिक्र, साइंसी सोच, साइंटिफिक थिंकिंग, ये देनी जरूरी हो गई आज के दौर में, वरना खुशफहमियाँ और किस्सा कहानी और नज़में से भूल भलैयों बच्चों को सही से बात कुछ नहीं बनेगी जाती। तो ये मैंने बताया, ये मेरा कहने का मुद्दा ये है कि बच्चों के लिए साइंसी अदब कितना ज़रूरी है, इस पर मैंने रोशनी डाली है कि इसके बगैर हमारा बच्चा आज के दौर में तरक्की कर ही नहीं सकेगा जाके। उसके बाद अब आइए अब मैं बताऊं कि किन किन सिफात या किन किन उन्मानात से एक मुसन्निफ, साइंस के मुसन्निफ बच्चों के साइंसी अदब पे मजामी लिख सकता है।
आम तो ये भी शिकायत सुनने को मिलती है, कौन टॉपिक्स पे लिखे यार, कहाँ टॉपिक्स मिलता है जाकर के, कौन सा उन्वानात पे लिखा जाए बच्चों का साइंसी मजामीन, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ा सा कुछ पुराने कुछ नुकात मैंने हम पेश करना चाहते हैं, जैसे गौर से सुनिए जाकर। हाँ, देखिए जब एक है साइंसी चार्ट। जब माहनामा उर्दू साइंस का इब्तदा में उससे मैं जुड़ा, उससे लिखना शुरू किया, तो मैंने सबसे पहले साइंसी चार्ट उसमें मैंने शाया करना शुरू किया, और कमोबेश हमारा 20 से 25 साइंसी चार्ट उसमें शाया हुए। कभी सितारा चार्ट, कभी मुसलमान साइंसदान चार्ट, कभी गैस चार्ट, कभी कुछ चार्ट की शक्ल में हमने वो एक चार्ट बने हर मास को शाया हुआ जाके। और हम ये भी कहते थे कि इस चार्ट का जो साइंसी चार्ट है, इसका जो सही जवाब देगा तो उसको हम अपने खत के जरिए हिम्मत अफजाई के एक सनद देंगे जाके। तो वो एक चार्ट जो है ना बरसों तक माहनामा उर्दू साइंस में मैंने शाया हुआ। तो कोई भी हमारा साथी अगर चाहे तो ये साइंसी चार्ट बच्चों को नई नई मालूमात के तहत मुरतब कर सकता है और उसको शाया करवा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि साइंसी अदब पे एक सिल्फ के तौर पर मैंने साइंसी क्विज चार्ट साइंसी चार्ट मैंने तैयार किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आ जाइए, साइंसी क्विज। ये तो बड़ा आसान है। देखिए, क्विज की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि कम वक्त में बच्चों को ज्यादा मालूमात फराहम हो जाती है। मैंने इस पर भी तजर्बा किया, और ये तजर्बा भी मैंने माहनामा उर्दू साइंस से ही शुरू किया। मैंने सबसे पहले जानवर क्विज लिखा, और जानवर क्विज करते थे कई महीनों तक सवालात मैंने हर मशाया होते रहे। उसके बाद मैंने परिंदा क्विज लिखा है उसी माहनामा साइंस में, जो भी कई किस्तों में शायद मैंने वो मजमून हुआ है। इसके बाद मैंने सांप क्विज लिखा है, सांप पर कई किस्तों में सवाल शाया हुए। फिर मैंने कहा किया कि मछली क्विज लिखा है, मछली क्विज के तौर पर भी कई मैंने किस्तों में वो क्विज शामिल हुए। तो ये बड़ा अच्छा एक दूसरा सिंह है कि थोड़ी सी मेहनत करके कुछ बच्चों के लिए क्विज तैयार किया जाए, ताकि बच्चे जो कम वक्त में ज्यादा मालूमात मैंने वो हासिल कर सके जाके। तो पहला तो है साइंसी चार्ट तैयार किया जा सकता है, दूसरा ये है कि साइंसी क्विज तैयार की जा सकती है जाके, और तीसरा है मुकालमा निगारी। मुकालमा निगारी बच्चों से बात गुफ्तगू करते हुए साइंसी मदामीन से मालूमात पेश की जाए। इसमें हमारी बहन शहताज खान ने इब्तदा की है, अल्लाह करेगा जोर कदम और ज्यादा। तो एक ये है कि साइंसी मुकालमा निगारी के जरिए साइंसी मालूमात को बड़े अच्छे ढंग से बच्चों के सामने पेश किया जा सकता है। देखिए, एक किताब मेरी जो है बातों बातों में साइंस, जो इसे कौमी कौंसिल नई दिल्ली ने शाया की है, वो किताब हमारी साइंसी मुकालमे पर ही मुश्तमिल है। इसमें कमोबेश 20 साइंसी उन्वानात के तहत बातचीत के जरिए हमने मालूमात फराहम करने की कोशिश की है जाकर। तो आप ये चाहे, कोई मेरा साथी चाहे तो मुकालमा निगारी के जरिए भी साइंसी मालूमात पेश कर सकता है जाकर। चौथा हमारी मकतूब निगारी। ये एक नई बात तो नहीं है, तो पुरानी बात ये है कि देखिए, खत भी बच्चों की कमजोरी है अगर खत कायदे से लिखा जाए तो जाकर। और तो मकतूब निगारी के जरिए भी आप चाहें तो साइंसी मजामीन पेश कर सकते हैं जाकर के, और बड़ी दिलचस्पी लेके बच्चे पेश करेंगे। इसी मिसाल को मैंने कहा किया कि तकरीबन 60 खतूत मैंने साइंसी खतूत लिखे। 30 खतूत पे मुश्तमिल एक किताब आओ साइंसी खत लिखे, एक उसी भाई जो मैं डिस्प्ले कहूँगा। 30 खतूत पे मैंने एक किताब लिखी, आओ साइंसी खत लिखे। देख रहे हैं आप हजरात, नजर आ रही किताब? जी नजर आ रही है। देख रहे हैं। तकरीबन कमोबेश 28 साइंसी खतूत हैं जनाब। और दूसरी किताब जो अभी हाल में आई है और साइंसी खत, इसमें भी कमोबेश खतूत हैं जाकर। तो दोनों किताबों को कौमी कौंसिल बराए फरोग ज़बान उर्दू ने शाया की है, जिसके अंदर ये दोनों के अंदर तकरीबन कमोबेश कर सकते 60 साइंसी खतूत शामिल हैं। खत के जरिए, मकतूब के जरिए साइंसी मालूमात फराहम की गई है जाकर। तो हम में से साथी अगर चाहे तो खत के जरिए भी वो साइंसी मालूमात बच्चों के सामने पेश करें। ये एक नया काम होगा, बल्कि हम तो पाकिस्तान के बारे में मैंने पता लगाया कि वहाँ भी शायद बच्चों के साइंसी खतूत पर मुश्तमिल कोई किताब अब तक मनस्से सहूद पर नहीं आई है जाकर। तो ये एक उन्वान है, इस पर आसानी से या नहीं कहेंगे, कोशिश करके
मजमून लिखा जा सकता है और लिखना भी चाहिए जाकर, ताकि साइंसी अदब में, उर्दू अदब तो खैर है ही है, साइंसी अदब में एक इजाफा हो जाए। अब इसी तसलसल के साथ मकतूब निगारी पर मेरी तीसरी किताब आ रही है। इसका मैंने नाम दिया है साइंसी चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है पर तो बहुत सारी किताबें मौजूद है, लेकिन साइंसी चिट्ठी आई पर किताब मौजूद नहीं है। इसमें मैंने आज़ाइम ले रखे हैं कि कम से कम 30 खतूत लिखूंगा जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 11 खतूत मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी 19 खतूत के बारे में आप अल्लाह से दुआओं को दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं से नवाजें, ताकि मैं अपने अज़ाइम को पूरा करके दिखा सकूं और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। देखिए ये कोई इश्तहार नहीं है, मैं थोड़ा सा अपने साथियों को रगबत दिलाने के मैं बात करना चाहूँगा कि देखिए साइंसी चिट्ठी आई में जो मैंने 11 अब तक उन्वानात का इंतखाब किया है, या देखिएगा उन्वान कैसा कैसा है। 1 नंबर है मुसलमान ख़वातीन की साइंसी खिदमात, मुसलमान ख़वातीन की साइंसी खिदमात। 2 नंबर उन्वान है इस किताब में मुसलमान ख़वातीन पायलट, मुसलमान ख़वातीन पायलट। तीसरा उन्वान है मुसलमान खलाबाज, मुसलमान खलाबाज। चौथा मजमून जो है हिंदुस्तान के मुसलमान साइंसदान, वो कदीम जमानों का नहीं बल्कि जदीद जो अभी साइंसदान हैं, ये हाल में 50 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमान साइंसदान थे, इनकी खिदमत को मैंने उजागर किया। देखिए एक पॉइंट और भी बता दूं कि मुसलमान साइंसदानों की खिदमत पर कम अज कम मेरे पास तो 10 किताबें हैं। उन तमाम किताबों में जिन मुसलमान साइंसदानों की खिदमत को उजागर किए गए हैं, उन तमाम का ताल्लुक वो कदीम जमाने के मुसलमानों को, मुसलमान साइंसदानों के खिदमत को उजागर किए गया है। लेकिन जदीद साइंसदान जैसे मैं बता दूं, सैयद जहूर कासिम हैं, जाके कि सर ज़ियाउद्दीन हैं, डॉक्टर उबैद सिद्दीकी हैं, प्रोफेसर ए सिद्दीक हैं, डॉक्टर साहिद जमील हैं, डॉक्टर एहतसाम हसनैन हैं, शमीम राजपुरी हैं, सैयद मोहन नकवी हैं, अनीसुर रहमान हैं। 1-2 नहीं तकरीबन 200-250 मुसलमान साइंसदानों का नाम ये पिछले 50 वर्षों से लेकर अताहल वो किताबों में है और उनकी साइंस की खिदमत भी है। देखिए जदीद साइंसदानों का अगर मिसाल बच्चों के सामने पेश करेंगे और उनके बारे में कहेंगे, ये ज्यादा बच्चे रागिब होंगे बनस्पत कदीम जमानों के साइंसदानों से जाकर। अब फिर जनाब कब तक हम लोग पेरिज्म सुल्तान बुद्ध के चक्कर में रहेंगे? उससे तो बात बनेगी नहीं। हमको दिखाना होगा किसी आजाद हिंदुस्तान में अभी हाल की बात है, अभी गुज़श्ता दिनों की बात है, अभी की बात है कि हमारे दरमियान ऐसे साइंसदान हैं। इन मिसालों से क्या होगा, बच्चे ज्यादा रगबत हासिल करेंगे और अपने असलाफ के कारनामों को जानकारी हासिल कर सकेंगे और उसकी रोशनी में इनके अंदर अज़ाइम, तवानाई, हिम्मत, शौक, जज्बा ज्यादा गालिब आएगा पर इस पर कदीम साइंसदानों का। तो अगर ये अच्छा, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है उन्वान इसमें है मुसलमान कोह पैमा, मुसलमान कोह पैमा। उसके बाद 7वां जो मजमून है इसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आजाद की साइंसी खिदमत, मौलाना अबुल कलाम आजाद की साइंसी खिदमत। देखिए उन्वान भी ऐसा है कि मौलाना आजाद का ताल्लुक सिर्फ सियासी गुफ्तगू, सियासी तकारीर अव्वल सदर के तौर पर पेश किया जा रहा है। बच्चों को अगर आप कहिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद भी साइंस से ताल्लुक रखते थे तो शायद यकीन वो कर ले जाएगी। इसलिए उनके सामने इनकी साइंस की खिदमत को उजागर ही नहीं किया गया। भाई इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं दावे के तौर पर, डंके के तौर पर और बिला खौफ तदीर ये बात कर सकता हूँ, आज हिंदुस्तान जिन साइंसी अदारों से मुंसलिक होकर तरक्की कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उन अदारों में से बेशतर अदारे मौलाना अबुल कलाम आजाद के कायम किए गए हैं जाकर। ये बात अब बच्चों को कौन बताएगा जाकर, कैसे बच्चे जान पाएंगे जाकर? अब इनका फर्ज बनता है कि इनकी खिदमत को उजागर न करें। चलिए आगे का अनुमान सोचिए, सुनिए। 8वां मजमून में शामिल किया है डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन रियाजी का शहजादा। ये उन्वान मेरी किताब में है, आने वाली किताब में। उसके बाद 9वां उन्वान है मुसलमानों का दुनिया बदलने वाली 10 इजादात, मुसलमानों का दुनिया बदलने वाली 10 इजादात। उसके बाद मैंने एक उन्वान इंतखाब किया है साइंस के तालिबी इल्मों के लिए टॉप 6 मुफ्त एंड्रॉइड्स
ये साइंसी ऐप से जिसको कोई लड़का मुफ्त में अपलोड करके और साइंस का बहुत सारे शोबों की जानकारी मुफ्त फराहम कर सकता है। आज का जब के बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन हर कुछ कर रहे हैं, उनको इस ऐप के बारे में अगर मालूम हो जाएगा तो आप ऐप को डाउनलोड करके बहुत ही एडवांस मालूमात को हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। मैंने उन तमाम ऐप का नाम देकर क्या उसके मैंने वेबसाइट को ये भी दे दिया हूँ ताकि बच्चे उसको डाउनलोड कर सकें। फिर 11वां मजमून जो इसके अंदर है, मुसलमान साइंसदानों पर लिखी गई उर्दू में किताबें। अब तक जो मेरे पास 10 किताबें जो मैंने हिंदुस्तानी राइटर की है, जो मुसलमान कदीम मुसलमान ही साइंसदानों पर लिखी गई किताबें, इन किताबों के नाम, मुसन्निफ, पब्लिशर, कीमत, कहाँ मिलेगी, मैंने तफासिल मैंने उसको शामिल कर दिया है ताकि कोई बच्चा या कोई बड़ा भी किताब को हासिल करना चाहे या जानना चाहे तो किताब बड़ी आसानी से लिखा जा हासिल की जा सकती है। तो ये 11 खुतूत तब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए। अब 19 खुतूत की बारी है। अब दुआ में अल्लाह 19 खुतूत भी इसी तरह उन्वानात पे लिखा दे जा करके ताकि बच्चों के सामने कोई नई चीज सामने आ सके। उसके बाद चलिए आगे बढ़े हम लोग कि देखिए आखिर में 2 बात मैं बताऊंगा, उसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा, फिर सवाल जवाब का सेशन होगा जाकर कि हम में से जो साइंसी मुसन्निफीन हैं, खासकर उर्दू मुसन्निफीन हैं जो आज शरीक हैं या फिर शरीक होने वाले हैं या फिर हिंदुस्तान के दीगर अहबाब हैं साइंसी मुसन्निफ जो हमारी इस बज में शरीक नहीं है, 2 बात करनी होगी जाकर। 2 बात अगर करेंगे तब तो हम बच्चों का साइंसी अदब पर दिख पाएंगे या कामयाबी हासिल कर पाएंगे। सबसे पहली बात तो है कि हम और आप, देखिए छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन मैं कहने आज मैं इस बात में कहा कहीं छोड़ूंगा ताकि हो सकता है कि मेरी बात लोगों को समझ में आए कि सबसे पहले तो हम साइंसी मुसन्निफीन अपने साइंसी मज़ामीन को लिखना इबादत समझें। ये भी जिस तरह दीगर इबादत है, उर्दू में साइंसी मज़ामीन लिखना भी इबादत है। हज़रात गिरामी, मैं आपको बता दूं कि मौलाना आसफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह फरमाया है कि अदब की खिदमत करना भी मुसलमानों को फर्ज है, वाजिब नहीं, नफिल नहीं, सुन्नत नहीं। अदब की खिदमत करना, ज़बान का खिदमत करना, ये मुसलमानों को फर्ज आयन है, इसको भी करना होगा। तो हम आप जो साइंसी मज़ामीन लिखें तो सबसे पहले है ना इस काम को हम लोग इबादत समझ के हम लोग करें कि अल्लाह तबारक तआला इसका सवाब अल्लाह देंगे जाकर। अच्छा, फिर इसका सबूत देखिए। ये एक मैंने बड़ों से ये भी सुना है कि एक मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि ऐ अली, तुम्हारे जरिया अगर एक आदमी भी राह हिदायत पर आ जाता है तो तुम्हारी नजात के लिए काफी है जान। अब सोचिए जनाब, हमारे और आपके मज़ामीन से एक बच्चा भी सही रास्ते पर आ जाए, एक बच्चा भी है ना हिदायत से मुड़ जाए जाकर के, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को इस बात की यकीन रखनी होगी इंशाअल्लाह हमारा ये फैल हमारी हिदायत के लिए काफ़ी है जाकर। उस तमाम हजरात जो हम लोग साइंसी मुसन्निफीन हैं, चाहे वो बड़ों के लिए लिख रहे हों चाहे छोटों के लिए लिख रहे हों, सबसे पहले हमें आपको इस बात पे यकीन करना होगा कि मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन लिखना एक इबादत में शामिल है जाए। और दूसरी बात जो है, जो आम तौर पर सुनते आए हैं कि ये एहसास कमतरी अगर किसी के अंदर है कि बच्चों को लिखना है ना बच्चों का काम है, या बच्चों का लिखना मामूली काम है, या बच्चों का लिखने वालों को पजीराई नहीं होती है, तो अजराए करम इस एहसास कमतरी को भी निकाल देनी होगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों का लिखना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी पजीराई होगी, अब वक्त के मैंने ऐन ज़रूरत भी है जाकर। ये 3-4 पॉइंट मेरे ध्यान में है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़े जाए। हज़रात, आप सब कितना कीमती है ये मुझे पता है, आप कीमती तो आपका वक्त भी कीमती, तो हम अपनी बातों को ज़्यादा तूल ना दे करके मैं समझता हूँ कि ये अपनी टोटली ज़बान से जो मैंने अब तक जो बात कही है यहीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और उसके बाद 2-4 मिनट रिलैक्स लेकर के अगर सवाल जवाब का अगर सेशन शुरू कर दिया जाए, कुछ बात अगर मुझे पूछनी हो मैं पूछूँ आपसे, आप हज़रात को कुछ पूछना हो तो मैंने मुझसे पूछ सकते हैं जाकर के। तो हम जनाब वही सम से इस्तदा करेंगे कि 2-4 मिनट के बाद अगर सवाल जवाब का सेशन रख देते हैं
तो बड़ा अच्छा होता है, ताकि 9 बनने में 15-17 मिनट बाकी हैं, ये 15-17 मिनट हम लोगों को सवाल जवाब का सेशन में गुजर जाता है, तो मेरी मालूमात में इजाफा होता है और हो सकता है किसी के भला भी हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल वदूद अंसारी साहब। मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से सब लोगों से मुखातिब हूँ कि आपके जहन में अगर कोई सवाल हो तो सवाल रखें, इंशाल्लाह अब्दुल वदूद अंसारी साहब उसका जवाब देंगे। अनम्यूट कर लें और उसके बाद सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी इरशाद। हेलो जी बोलिए। सर अभी बोलिए। आपने बताया ना जो साइंस का एप्लीकेशन ऐप है जो उर्दू में, बोलिए। आपने अभी बताया ना सर कि उर्दू में ऐप है जो साइंस के लिए, बच्चों के लिए। सर आप दोबारा से बता सकते हैं उसे? ऐप का नाम बताइए। वो ऐप तो अभी मुझे याद नहीं है, मैंने उस किताब में मैंने ये किया है। अगर आप अपने व्हाट्सएप पर अगर आप अपना नंबर भेज देती हो तो मैं उस मजमून का में भेज दूंगा जाके। हाँ ठीक है सर, शुक्रिया। जी मेरा नंबर व्हाट्सएप पर मालूम हो गया। आपकी डॉक्टर मोहित से मेरे बड़े भाईजान से आप ले लीजिए, आप इनसे रब्ता कीजिए, मैं आज ही उसको अक्स करके भेज दूंगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ सर आपका नंबर बोलिए सर, मैं नोट कर लूंगी। नंबर बोलिए वदूद साहब। 967। हाँ बोलो सर। 4895 हाँ बोलो सर। 325 325। 10 नंबर हुए, 10 अदद हुए। नहीं सर, रिपीट बोलता हूँ। 967 4895 4895 325। हाँ ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। आप बहन में आज मुझे कहिए, मैं आज ही भेज दूंगा या कल भेज दूंगा इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़िए आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। फातिमा बाजी बोल रही हैं? सैयदा फातिमा जोहरा औरंगाबाद महाराष्ट्र से बोल रही हूँ सर। जी क्या हाल है फातिमा बाजी? अच्छी हूँ सर, अल्लाह का फजल है, बहुत बड़ी मेहरबानी है अल्लाह पाक की। सर आज की आपकी गुफ्तगू बहुत बेहतर रही सर। मैं आपको दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और साथ ही साथ सताइश भी करती हूँ। और अंजुमन के जिम्मेदारान मोहतरम शमसुल इस्लाम फारूकी साहब, मोहतरम असलम परवेज साहब, मोहतरम मोहित शम्स साहब, मोहतरम जफर हसन साहब और मोहतरम आबिद मोहित साहब को भी दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो लोग गाहे बगाए इस तरह के वेबिनार का इनेकाद कर रहे हैं। सर बच्चों का साइंसी अदब यकीनन बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे आमतौर पर अब प्रैक्टिकल से ज़्यादा मुतासिर होते हैं। साइंसी अदब और प्रैक्टिकल या अमली तजुर्बा किस तरह जोड़ें सर? अदब और प्रैक्टिकल, अदब और अमली तजुर्बा, इसको किस तरह जोड़ें सर बच्चों के लिए? तो आपकी किताबें माशाल्लाह नज़रों से गुजरी सर, उसमें थ्योरी समझ में आ रही सर, प्रैक्टिकल को किस तरह लिंक करें? फातिमा बाजी शुक्रिया, ज़्यादा दुआएं दीजिए। जी सर। अमली तौर पर कैसे बच्चों से जुड़ें या बच्चों को बताएं? हाँ, साइंसी अदब को अमली तौर पर किस तरह जोड़ें सर? एक मुख्तसरन 1-2-3 लाइन में अगर पॉसिबल है। देखिए 2 बातें हैं। जी। एक बात तो यह है कि मज़ामीन से जुड़ना चाहते हैं या और भी कोई अपने कोई एक्टिविटी से जुड़ना चाहते हैं, ये 2 अलग अलग बनवाना आते हैं जाके जी। मैंने ये अगर मज़ामीन से जुड़ना चाहते हैं तो वो शक्ल ये है कि मज़ामीन लिखा जाए, साइंसी मज़ामीन लिखा जाए। अमली तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो जब ये हम लोग अंजुमन सोबत साइंस के बुजुर्ग में जो ये आ रहे हैं तजावीज़ आ रहे हैं कि इसको से मुलाकात की जाए या फिर कोई मतलब ऐसा सेमिनार किया जाए, जो तजावीज़ आ रहे हैं फाइनल हो जाएगा। तजावीज़ जब मैंने मशवरा का तहत तजावीज़ हैं वो फाइनल हो जाएंगे, तजावीज़ पर अमल करके अमली तौर पर बच्चों से जुड़ा जा सकता है। मैंने एक बात ये कही थी कि सबसे पहले बच्चों से जुड़ने से पहले बच्चों को पढ़ाने वाले उस्ताद से जुड़ना होगा हमें, आपको जाकर
जी जी बिल्कुल दुरुस्त सर। हाँ, ये बच्चों से आप बलाहिदार जनाब नहीं जुड़ सकते हैं जाके। आपको सबसे पहले बच्चों का पढ़ाने वाले जो प्राइमरी स्कूल के उस्ताद मोहतरम है उनसे जी, जी। पूछना होगा, उनको इस बात को तरगीब देनी होगी, उनको इंस्पायर करना होगा कि जब आप चाहें तो अपने बच्चों को, उन्हें कहा पड़ा जाता है कि मैंने APJ अब्दुल कलाम आजाद जुमले हमने उनको ये करके उनके एहतराम को मजबूत रखते हुए उनसे बातें करनी होगी, या उनको इस तरफ आगे करना पड़ेगा। इसलिए वो ज्यादातर काम बच्चों का वो कर पाएंगे, जैसे बच्चे तो हमारे सामने है नहीं, तो हमारी बात कहाँ कौन सुनेगा जाके। हम अगर मजमून भी लिखे, कितने लोग पढ़ेंगे, कितने बच्चे पढ़ेंगे। साइंस के मजमून पढ़वाने का काम भी साइंस का उस्ताद ही करवा सकता है। आप जी सर, जी। करता है, कितने जी, बिल्कुल दुरुस्त। उमंग को अपने घर में लाते हैं जाकर। जी बिल्कुल दुरुस्त। पढ़वाने का काम भी स्कूल का उस्ताद ही कर सकता है, करवा सकता है। तो स्कूलों में लाके या उन बच्चों को कन्विंस करके, उन बच्चों को राग़िब करके कि बाबू कीमत 10 रुपए है, घर में जाकर बोलना, अब्बू को 10 रुपए में ताला ला दे, उससे बहुत तुमका फायदा होगा। मुस्तकबिल में जाकर तुम बहुत बड़े अदीब हो जाओगे, तुम बहुत बड़े साइंसदान हो जाओगे। तो हर हालत में देखिए मोइज भाई, मैं एक बात बता दूं, तजावीज़ तो अपनी जगह पर है। सबसे पहले हमें आपको इस बात को ध्यान रखनी होगी कि प्राइमरी स्कूल का जो उस्ताद मोहतरम है उनसे राब्ता कायम करके, उनकी बातों को बर्दाश्त करके, उनके एहतराम को मजबूत रखते हुए उनको हमें आपको कन्विंस करनी होगी इलाका वाइज के बच्चों के अंदर साइंसी तसव्वुरात या साइंटिफिक अंदाज हाई फिक्र मैंने पैदा की जाए। मेरी अपनी जाती राय है, तो हो सकता है आपकी राय दूसरी हो। नहीं नहीं सर, जी जज़ाकल्लाह सर, बहुत मुनासिब और अच्छा जवाब रहा सर। आप इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे। बात करें या सवाल पूछे जाकर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। कौन साहब? मैं रियाज अहमद दुबई से बात कर रहा हूँ। और रियाज बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, देखिए इजाजत है थोड़ा बताऊँ। देखिए रियाज अहमद साहब हमारे दुबई में डॉक्टर रियाज अहमद ही मैथमेटिक्स में MSc है, PhD भी हैं, और बहुत जल्द मैं रियाज अहमद साहब को अपने ग्रुप में उनका तारुफनामा रहिया इंशाअल्लाह ताला शामिल करूंगे। मोइज भाई, मैंने बहुत अच्छा साथी हम लोग को मिलने वाला है। चलिए उनकी बातें आप सुनिए। हाँ फरमाइए रियाज भाई, क्या बात है? अभी फातिमा ज़हरा साहबा ने जो सवाल किया कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड साइंसी मज़ामीन, उसको कैसे हम बच्चों के अंदर लाया जाए, बच्चों को समझाया जाए प्रैक्टिकल बेस्ड। पूरी दुनिया आज जो है स्टेम एक फॉर्म ऑफ एजुकेशन है, स्टेम STEM, उसमें पूरी दुनिया इसी फॉर्म ऑफ एजुकेशन को लाना चाह रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। उसकी मेन और अहम वजह यह है कि उसके लिए अब मौजूदा वक्त में जिस तरह के ट्रेन टीचर की जरूरत है वैसे टीचर दस्तयाब नहीं है। तो ऐसे प्रोग्राम को करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मजमून के जानकार लोग, उनकी खिदमत हासिल करनी होंगी, तब जा करके ये काम आसानी से हो सकेगा। ये एक पहली बात। पूरी दुनिया इस तरफ चले। STEM आपको मालूम होगा, स्टेम जो साइंस और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इसी को बेस करके पढ़ाया जा रहा है। लोगों का आज का नजरिया एजुकेशन में है कि इंडस्ट्रियली फ्रेंडली करिकुलम पर बनाया जाए, जिससे बच्चे जो है पढ़ करके डायरेक्टली जो है वो किसी इंडस्ट्री में कामयाब हो सके। हमारे कौम के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अब सबसे पिछड़ी हुई कौम जो है वो मुसलमान ही है। तो इस तरह की कोशिश, इस तरह का सवाल जो आपने उठाया फातिमा ज़हरा साहबा ने, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जिस उन्वान के तहत है उसमें सिर्फ साइंसी अदब की बात की गई है। अब जहाँ साइंसी अदब है, अब पता नहीं ये साइंसी अदब कैसे आया, ये अलग बात है। अरे अदब तो अब कोई जैसे तारीख लिखेगा, तारीखी बात लिखेगा तो वो तारीखी अदब हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा महरूम अगर इसमें कोई है तो मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स कहाँ से लाए अपना अदब कि वो मैथमेटिकल अदब हो? शायद यही वजह है कि आप लोगों ने मैथमेटिशियन को इस अंजुमन से बाहर रखा हुआ है, जबकि मैथमेटिक्स एम्बेडेड है तमाम साइंस की जुबान में। मेरा तो ये मानना है कि मैथमेटिक्स को जब निकाल दिया जाए तो साइंस बाकी ही नहीं रहेगा। वदूद अंसारी साहब खुद मैथमेटिशियन है। हाँ जी 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 जी, मुझे मालूम है। मैं एक बात बोलूँ।
देखिए ये तो बिल्कुल सही है कि अदब की कोई अदब एक इकाई है जिसकी तकसीम मुमकिन नहीं है जाकर के, ये तो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। अदब एक इकाई है जिसकी तकसीम मुमकिन नहीं है। आप कहा कि उस अदब में इनकी इस असनाफ बजरिया शामिल हो सकते हैं, इस असनाफ का ही नाम का एक नाम ये भी है साइंसी अदब। इस बात नहीं है, ये अदब को हम लोग बांटे नहीं है। आप रियाजी की बात कर रहे हैं तो ये हमारा साइंसी अदब के अंदर शामिल है, वो हमारा। जब आप साइंसी अदब बोलेंगे तो उसके अंदर साइंस के तमाम उलूम और तमाम उन्वानात शामिल रहेंगे। वो अलग से रियाजी अलग नहीं होगी और अलग से मैंने इल्म नबातात अलग नहीं होगा। जब साइंसी अदब की आप बात करेंगे तो उनके अंदर तमाम साइंसी मजामिल की शमूलियत का नाम है साइंसी अदब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम बरकातहू। नासिर भाई फरमाइए, तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी, अल्लाह का शुक्र है, बस आपकी दुआएं शामिल है। आप अच्छे दिख रहे हैं माशाल्लाह, खुशी की बात है। आपका लेक्चर बहुत अच्छा रहा, बहुत दिलचस्प रहा है। और अभी जिस मौजू पे गुफ्तगू चल रही है वो अदब के साथ साथ इंस्पायरेशन के बच्चों को हम किस तरह से नॉलेज इम्पार्ट करें, इस पर बहुत अच्छी सी सलाह से गुफ्तगू चल रही है। मैं थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहता हूँ कि आजकल के जो जदीद ज़राए अबलाग है या हमारे पास जो मीडिया की सोर्सेस है उसका इस्तेमाल करके हम ब्लेंडेड टीचिंग की जो मेथोडोलॉजी है कि मुख्तलिफ अंदाज में हम बच्चों को जो है तो जहाँ तक हो सके प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करके उनको बताएं, स्क्रीन के जरिए या क्लास रूम में या गार्डन में ले जाके या जू में ले जाके, तो बहुत हद तक जो हमारा अदब या जो कुछ भी मज़ामीन हमारे मंजर आम पर आ रहे हैं उसको बच्चे हमारे और आसानी से समझ सकते हैं। और उसमें आप जैसे असातिज़ा इकराम की पॉपुलर जो राइटिंग्स है वो बहुत मदद करेगी इंशाल्लाह, ऐसा हम समझते हैं। जी शुक्रिया। सही फरमाया जरा। अस्सलाम वालेकुम। आप बताइए। फहीम अदीब फारूक औरंगाबाद से आपसे मुखातिब है। जी आपका तस्वीर मैंने पहचान ली जाके। हाँ फरमाइए, क्या फरमाते हैं? जी सबसे पहले मोहित साहब और दीगर जिम्मेदारान के साथ अब्दुल वदूद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी शुक्रिया। जी सर एक मेरा एक बात है कि जो भी आप हो या फिर और कोई कलमकार हो जो तहरीरें या तसानीफ ज़ब्त तहरीर कर रहे हैं, तो क्या ये 100% बच्चों तक पहुंच रही है? अगर हम बच्चों की दुनिया या फिर जो बच्चों के रिसाले हैं इसको अगर छोड़ दिया जाए तो क्या इसके अलावा हमारी तहरीरें या हमारे जो भी तस्वुरात है, कंसेप्ट्स है या तहरीरें जो भी कहेंगे हम, नफ्स मजमून है, तो क्या वो बच्चों तक 100% पहुंच रहा है? और अगर नहीं पहुंच रहा है तो इसके लिए क्या लाहे अमल होना चाहिए? मैं बताता हूँ और मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ, सुनो। एक ऐसा है कि आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपकी बात ही अहम बात है। मैंने बच्चों का साइंसी अदब को कामयाबी की तरफ गामजन करने के लिए या बच्चों तक में साइंसी अदब को पहुंचाने के लिए, बिल्कुल ये बात सही है कि जितने भी साले निकल रहे हैं साइंसी बच्चों के लिए या ऐसे भी अदबी साल निकाल रहे हैं, उनको बच्चों तक पहुंचाने की सबसे पहली फिक्र करनी होगी जाके। उसके दो तरीके हैं जाके। एक पता है ना, सबसे उम्दा तरीका है बिरादम के साइंसी मज़ामीन या साइंसी रिसाले या बच्चों के रिसाले के बच्चों तक पहुंचाने का सबसे अहम हथियार जो है वो प्राइमरी असातिज़ा कराम की रजामंदी, उनकी दिलचस्पी, ये दो बातों को पहले हम लोगों को सोचनी होगी और अमली तौर पर उनसे राब्ता कायम होगा। वो इस अमल पर तैयार हो जाएंगे तो फिर जो आपने जो सवाल किया कि साइंसी मज़ामीन या दूसरे मसाइल, तभी वो पहुंच सकते हैं, वरना और गार्जियन के थ्रू के लिए ना वो बात नहीं हो पाएगी जो बात होनी चाहिए। आप सिर्फ औरंगाबाद की मिसाल लीजिए, महाराष्ट्र का, कि वहाँ एक मिर्जा बोगदीपुर है। मिर्जा बोगदीपुर माशाल्लाह जो बच्चों का दुनिया को मैंने सुना है कि शायद 500 कॉपी वो खरीद के ना 500 मेंबर बनाए हुए, 500 घर में वो लोग सप्लाई करते हैं जाकर। तो देखिए एक इंफरादी मिसाल वहाँ औरंगाबाद की भी है कि वो सब नदवी साहब हैं, अल्लाह जज़ा खैर दे, कि 500 से साथ नासिर साहब कितने रिसाले मंगाते हैं वो बच्चों की दुनिया की? 55,000 रिसाले मंगाते हैं वो और पूरे महाराष्ट्र में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मिर्जा अब्दुल क़य्यूम बस यही मर्द मुजाहिद, इस तरह मर्द मुजाहिद में पैदा करने होंगे या पैदा होने होंगे। अब हम ये काम मैंने हम लोग खुद भी चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं जाते। अरे हर आदमी जो भी शुरा है, हर अल्लाह तबारक तआला का हर को इतना इस्राफ दिया है कि वो 100 शुमारा मंगा के लोगों तक पहुंचा सकता है जाकर। इसको सदका जारिया समझ के जाकर, इसकी इबादत समझ के जाकर। तो देखिए वो औरंगाबाद की मिसाल को सामने रखते हुए
दिगर रियासतों के अहबाब है ना अमली तौर पर खड़े हो जाएं, तो फिर वहाँ को उस्ताद से कन्विंस करके ज़ाती तौर पर इस तरह काम करके किया जाए, तो फिर फारूकी साहब मैंने ये आपका जो आपने जो प्रॉब्लम मैंने बयान किया, आपने जो मसला बयान किया, इसका हल बड़ी आसानी के साथ मैंने तलाश किया जा सकता है। सर मैं एज ए प्रिंसिपल रिटायर्ड हुई हूँ। असेंबली के बाद 1-2 मिनट का वक्त हम लोगों को देते थे, वो आकर अपने रिसाले स्टूडेंट को बताते थे असेंबली के बाद फौरन, और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करके फिर 8 दिन के बाद आकर पैसे कलेक्ट करते थे, तो तकरीबन बच्चों तक पहुंच जाते थे। वाह, देखिए खिदमत, देखिए काम करने वाले लोग कैसे कैसे काम करें, बात नहीं है सिर्फ अपने जबानी जमा खर्च नहीं है। देखिए अमली काम औरंगाबाद के साथ कर रहे हैं, जो कितनी बढ़िया खिदमत है, जा किस तरह से अगर हर साथ में रियासत में लोग खड़े हो जाएं, तो फिर करीब वो दिन आएगा कि बच्चों के अंदर, जो हमारे उर्दू दान बच्चों के अंदर भी है ना, वो साइंसी पॉपुलर साइंस का अपने जोर सुधारना असर दिखाना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह जी। और इन्हीं रिसालों में आपकी किताब बातों में साइंसी खत लिखे के तबसरे शाये हुए, और उसको पढ़कर बच्चों ने जो है तो बहुत सारी वो किताबें खरीदे भी यहाँ पे कौमी काउंसिल से मंगाकर। इस तरह से फहीम साहब जैसा फरमा रहे हैं कि रसाई कैसे हो किताबों की, तो इस तवज्जुह से भी बहुत सारे आपकी किताबों की या दीगर किताबों की भी रसाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से हुई। इस बारे में मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी भी किताब जो है बच्चों ने खुद, खान बात कर रही हूँ जी, मेरी किताब पिकनिक भी लोगों ने खरीद कर पढ़ी है, और मेरी किताब पर तबसरे आलिम फाजिल लोगों ने नहीं बल्कि बच्चों ने किए हैं, और मेरी किताब लगातार खरीद कर पढ़ रहे हैं। और जब मैं कोई मेरी कहानी अखबार में शाया होती है तो बच्चे मुझे कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि उन्हें कोई स्कूल का लेसन समझ में आया है। जी माशाल्लाह। मैं शाता साहिबा के ताल्लुक से एक बात कहूँगा कि आपकी ये मुनफरिद बात ये रही कि हमेशा जो अदबा है या जो तसानीफ लिखने वाले हैं वो एक प्रोग्राम के अंदर इफ्तिताह करते हैं, किताब की वो करते हैं। मोहतरमा की खास बात रही कि मोहतरमा ने स्कूल जाकर बच्चों में किताबें तकसीम की। जी, मेरी किताब का रस्मी इजरा जो था वो भी एक स्कूल में हुआ था, पालघर के एक स्कूल में, और वहीं के बच्चों ने पहला तबसरा भी किया और बाद में वो शाये भी हुए हैं, और लगातार बच्चे अभी भी मेरी कहानियां पढ़ते हैं और मुझे कांटेक्ट करते हैं और मुझे बताते हैं कि उन्हें क्या समझ आया। जी बेहतर है, बेहतर है। जी जी जी। और कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं तो कहें, 2 मिनट वक्त बाकी है। वदू साहब मैं क्या एक और सवाल कर सकता हूँ? बिल्कुल शौक से कीजिए, जनाब, खुशामदीद इस्तकबाल है। जनाब मैं अभी तक जो कुछ भी हम मज़ामीन अक्सर पढ़ते हैं अदब अतफाल को लेकर साइंसी, तो ज्यादातर मज़ामीन इसमें इंफॉर्मेटिव रहते हैं, और मेरा एक ऐसा अदना या नाक़िस ख्याल है कि इंफॉर्मेटिव के अलावा कुछ ऐसे मज़ामीन भी होने चाहिए, चाहे वो ड्रामे की शक्ल में हो, खुतूत की शक्ल में हो या फिर कहानी की शक्ल में हो, जो बच्चों को किसी एक मखसूस तस्वुर कंसेप्ट को वाज़े कर सके। ऐसा है भाईजान, देखिए मैं बताऊं कि आप मेरी पॉपुलर साइंस से मेरी किताबें पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं कहता कि आपकी बातें पे हमारी किताब में 100% बने उससे नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है कि आप जो करें इस बात का ख्याल रखने, आप मेरी किताब पढ़ें तो इंशाल्लाह कुछ हद तक ये बातें आप मौजूद पाएंगे। और कोई सवाल आप लोगों के ज़हन में हो तो? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आबिद मोइज साहब, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वदूद साहब, और तमाम महबाब को अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उमर बिन हसन हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर उमर बिन हसन। मैं जराहा हूँ सर। कहाँ से हैं आप? जी हाँ, मैं सर्जन जराहा हूँ। मैं रियाद में मुक़ीम हूँ, सऊदी अरब रियाद में हूँ। अच्छी बात। तो मेरा जो मुशाहिदा बताऊंगा आपको, मुशाहिदा मेरा ये है कि जैसा मेरी बच्ची जब पढ़ती है तो जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है या बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल है, ये कोई चीज पढ़ना चाह रही, तो मैं यूट्यूब पे जो है बटरफ्लाई लाइफ साइकिल मारता हूँ, तो एक 2-3 मिनट का वीडियो आ जाता, सिर्फ 3 मिनट का, और वो 3 मिनट के वीडियो में उसकी पूरी साइकिल को एनिमेटेड अंदाज में और कुछ रियल बटरफ्लाई के जो तितली जो उड़ रही है वो इमेजेस और ये सब चीजें मिला के 3 मिनट में बेहतरीन तरीके से, आप भी अगर चाहें तो ये मतलब हमारा सेशन खत्म होने के बाद चेक कर सकते हैं, आप शायद चेक किए होंगे। तो इन तमाम चीजों की मौजूदगी में बच्चे किताबों की तरफ कैसे आए, जैसे 2-3 मिनट में उनको पूरी इंफॉर्मेशन और मुख्तलिफ एंगल से मिल जा रही, जैसे सोलर सिस्टम है, हर तरफ से मिल जा रही एंगल,
जैसा आप साइंस से फुतूर की, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब समझेंगे आपके ये लड़का जो है हर बार कुछ ना कुछ बहुत अहम सवाल कर रहे हैं आप, अजीब जो है एंगल से लेके आता, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि उनकी दिलचस्पी भी उसमें ज्यादा है और वो चीज उन तक पहुंच रही भी। हमारी किताबें शायद पहुंच रही या ना पहुंच रही हो, वो चीज पहुंच रही है और 3 मिनट में वो लोग समझ रहे हैं और खुश हो जा रहे हैं। तो हमको उससे कंपटीशन है इस वक्त। तो इस ताल्लुक से आपकी क्या राय है? अब फिर वक्त इंटरनेट, अच्छा यूट्यूब पे प्रैक्टिकल के ताल्लुक से स्मार्ट चैनल्स हैं, कोई भी आप टेस्ट करना चाह रहे हैं केमिस्ट्री का या कोई भी, आप जाकर देखिए डेडिकेटेड चैनल्स बोलते हैं उसको, यानी एक आदमी एक चीज पकड़ लेता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया तो उस पर तजुर्बा करते रहता और हर हफ्ता एक एक दो वीडियो डालते रहता। तो यानी मजामीन का बदल तकरीबन यूट्यूब चैनल्स और यूट्यूब की 3-3, 4-4 मिनट की वीडियो हो गई है और वो 3 मिनट की वीडियो बनाने वो लोग एक हफ्ता लगाते। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, एक हफ्ता मेहनत करके 5 सेकंड 10 सेकंड मिला के वो बनाते हैं। तो बहरहाल इस ताल्लुक से भी कुछ गुफ्तगू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अब्दुल वदूद साहब को मुबारकबाद दे रहा था मैं। ठीक है भाईजान, बहुत हिम्मत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। आप अपनी दूर से बताइए, सुन रहे हैं जाके हम लोगों का, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नहीं मैं तो वक्त को उसमें अलार्म लगा करके मैंने रखा था कि सुनूंगा। और ये कि जितनी प्रैक्टिकल मशवरे अभी आए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने जो ये कहा कि प्रैक्टिकल की तरफ जाना है, तो ये जाहिर है टीचर्स के ही, आपने सही जवाब दिया उसका कि जब तक टीचर्स नहीं मुखातिब होंगे बच्चों को, उनको राय रास्त पे लाना मुश्किल है। तो इसलिए टीचर्स का एक कॉन्फ्रेंस या रीजनल इस तरह बना के उन्हें, और उसमें बच्चों के साइंस को आम करना चाहिए। जी बिल्कुल सही। बहुत मुबारक हो। और मोहित साहब को बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया, हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे ख्याल में कोई अगर और सवाल हो नहीं तो फिर डॉक्टर जफर हसन साहब थोड़ी बात, एक आध 2-3 बात बताएं डॉक्टर जफर हसन साहब, जो हम लोग के काम की। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाह व बरकातहू। बखैर हैं? जी अल्लाह करम मेहरबानी, बड़ा अच्छा लेक्चर दिया आपने भाई, और जाहिर है बच्चों के लिए तो बहुत मुफीद मालूमात हैं। बस मसला वही है कि बच्चों को कैसे घेर के लाया जाए इंटरनेट के दौर में, क्योंकि आजकल तो बस वो उस जिन को हाथ में पकड़े हुए हैं और दुनिया जमाने के अलाए वलाए देख रहे हैं। तो बस घेर के लाने का मसला है। किताबें तो वाकई में लिटरेचर तो अवेलेबल है, बहुत है। आपने बड़ा अच्छा लिटरेचर फराहम किया हुआ है। आपकी कई सारी किताबें मेरे पास भी हैं और मैंने पढ़ी भी हैं, बहुत उम्दा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम मौजूद सामीन। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। जी मैं नसीमुन्निसा मोहम्मद रमजान, इस्लामिया हाई स्कूल जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस की वाइस प्रिंसिपल बात कर रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से। इस्तकबाल है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। और सर आप तमाम वदूद साहब को भी मुबारकबाद इस बात के लिए कि साइंसी ज़ौक़ के ताल्लुक से जो गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने सभी ने साइंसी अदब के ताल्लुक से बहुत सारी मालूमात फराहम की हैं, लेकिन सर मेरा एक सवाल है कि आजकल जो बच्चे हैं वो अदब पढ़ना नहीं चाहते, किताबें नहीं पढ़ना चाहते। तो मेरा जाती तजुर्बा ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि असेंबली में पेश दर्स लेते हैं 10 मिनट के लिए, और उस दिन जो होने वाली सारी जो भी कुछ गुजरा है, तो कभी साइंसी अदब के ताल्लुक से, कभी अपने तख्लीकी अदब के ताल्लुक से, क्रिएटिविटी के ताल्लुक से, पेश दर्स में हर बच्चा यानी एक दिन का एक क्लास रिप्रेजेंट करती है, तो जिससे उस दिन होने वाली और हमारे अपने सारी बातें बच्चों को, दूसरे बच्चों को माइक के जरिए तमाम क्लास में पहुंच जाती हैं। तो इस तरह से मेरा ये कहना था कि अभी जैसे हम साइंसी ज़ौक़ किताबें पढ़ते हैं, तो बहुत सारे सामीन ने ये भी कहा कि प्रैक्टिकल के जरिए होना चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ सर कि सबसे पहले तो हमारे टीचर्स को साइंसी ज़ौक़ रखना चाहिए, साइंस के ताल्लुक से अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आज भी हम और हमारे टीचर्स जो हैं वो एक क्लासरूम के बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जबकि आज आप देखेंगे
کہ अभी इस वक्त जो है कंपटीशन का दौर है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हर तरीके से मुहैया है, लेकिन हम अपने बच्चों तक वो पहुंचा नहीं पाते क्योंकि बच्चों में साइंसी ज़ौक़ की कमी है, या हम ये कह सकते हैं कि असातिज़ा में कमी है। तो असातिज़ा को मेरे हिसाब से सबसे पहले अपग्रेड होना चाहिए सर। जब तक असातिज़ा अपग्रेड नहीं होंगे हमारे बच्चों को वो कैसे पढ़ा सकेंगे। तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि विद प्रैक्टिकल्स कि आप जो भी मज़ामीन लिखें, अगर उसमें कि उस मज़ामीन में एक चीज़ और ऐड की जाए कि हाउ टू प्रैक्टिकल, यानी उसको हाउ टू एक्सप्लेन विद प्रैक्टिकल्स। ये मेरे ज़ाती राय थी। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ और आप तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। बाजी मैं एक बात बताऊँ आपको जाके बाजी। जी सर। बात ये है, देखिए मैंने पहले भी कहा, अभी कह रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक को तकरीबन 30 साल से कमोबेश प्राइमरी स्कूल के टीचर के ट्रेनिंग क्वालिटी से रहा है, उसमें प्रिंसिपल रहा है। जी सर। तकरीबन समझिए कि 30 साल अरसा में 4-5 हजार तो प्राइमरी उस्तादों की तरबियत देने का फर्ज का अंजाम दिया हूँ। देखिए प्राइमरी स्कूल के जो उस्ताद हैं, चाहे वो साइंस के आदमी हो या आर्ट्स के आदमी हो या कॉमर्स के आदमी हो, जी प्राइमरी स्कूल का जो उस्ताद हैं, तमाम का तमाम उस्ताद 100% उस्ताद इस बात की जानकारी रखता है कि बच्चों के लिए साइंस के मालूमात नहायत ही जरूरी है, और बच्चे जो है ना साइंस के जरिए ही आगे तरक्की करेंगे। ये जी जरूर जरूर। तो बताएं ना कि मसले का मेरी नजर में ये है कि सबसे पहले हम लोग प्राइमरी स्कूल के उस्तादों से मिलें और उनको कैसे कन्विंस करें, तब उनके जरिए काम का आगाज होगा, काम का फैलाव होगा। जी इंशाल्लाह। जी सर। अगर का जो उस्ताद है वो डीएलएड पास है या डीएलएड के अपने क्वालिफिकेशन रखता है, हाई सेकेंडरी स्कूल 12 क्लास पास, एक 12 क्लास के पास के टीचर चाहे जिस मजमून में ताल्लुक रखता हो, हर के ध्यान में ये बात है, हर ये चाहता है कि बच्चा जो है ना वो साइंस की तालीम हासिल करे और साइंस के लिए तरक्की करे। तो सबसे पहला काम जो मेरी नजर में है वो प्राइमरी स्कूल के उस्तादों तक हम लोग की रसाई कैसे हो और उनको हम लोग कैसे मोटिवेट करें, ताकि एक तबका जो उसके सामने है, जो हमारे आपके सामने नहीं है जाके, उस हल्का उस तबका को इस टीचर के जरिए कैसे उसके मैंने मिजाज की साइंसी मिजाज की आबियारी करेंगे। तो टीचरों से बाजी सबसे पहले रास्ता कायम करना होगा और उन पर हमारी पहली कोशिश करनी होगी। अगर वहाँ पे हम लोग कामयाब हो जाते हैं और उनकी कोशिश शुरू हो जाती है तो मसले का हल बड़ा आसानी के साथ नजर आ रहा है। तो ये आपकी रहिए, इट इज माय ओन ओपिनियन बाजी। जी सर। प्रोफेसर जाहिद साहब कुछ कहना चाहते हैं। प्रोफेसर जाहिद साहब, प्रोफेसर जाहिद खान साहब, प्रोफेसर जाहिद खान साहब जी फरमाइए। हाँ, अब आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपका कि आपने अब्दुल वदूद अंसारी साहब की एक किताब के लिए मुझसे बताया था, और फिर अब्दुल वदूद अंसारी साहब ने एक और किताब भी रेकमेंड की थी। वो दोनों किताबें NCPUL से मैंने मंगवा ली हैं। वाह वाह वाह, तो ये मैंने हमारी सादत की बात है साहिद भाई, क्या बात है, क्या बात है। जी 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 जी। तो दोनों किताबें मैंने मंगवा ली, बहुत ही दिलचस्प किताबें हैं, और आज का जो लेक्चर था वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मेरा ख्याल है सवाल जवाब तो होते रहते हैं और लोगों के अलग अलग ख्याल भी होते हैं, लेकिन किताबों का लिखना वो अपने में खुद बहुत बड़ी महारत की चीज़ है। और मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि किताब लिखने वाला हर एस्पेक्ट को उसमें कवर करे, दूसरे लोग भी हैं जिनको कवर करना चाहिए। जैसे ये मतलब थ्योरेटिकल किताबें हैं, प्रैक्टिकल के लिए और भी बहुत दूसरे तरीके हो सकते हैं, बहुत से लोग आ सकते हैं, जैसे फन इन फिजिक्स, फन विद मैथमेटिक्स, और इस तरह की बहुत सी किताबें। अभी मैं चंद दिनों पहले एक लेक्चर पढ़ रहा था, सुन रहा था, वीडियो लेक्चर MIT के एक साइंटिस्ट का, फिजिसिस्ट का, रेनबो के ऊपर 2 घंटे का लेक्चर। आप इमेजिन कीजिए, रेनबो के ऊपर 2 घंटे का लेक्चर उनका था, और वो डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ हो रहा था। तो अगर मतलब हम लोग भी इसी तरह की एफर्ट करें, लिखने वाले लोग तो अलग होते हैं,
लिखी, उन्होंने किताब भी लिखी है, लेकिन उसके साथ वो लैब वहाँ पे लेक्चर हॉल में डिमॉन्स्ट्रेशन भी पूरे एक्सपेरिमेंट किया, लेजर से उन्होंने रिफ्रैक्शन का किया, रेनबो दिखा के वहाँ दिखाया लैब में। उसी तरह बिल्कुल जैसे वो कमालुद्दीन फारसी ने 12वीं या 13वीं सदी में सबसे पहले डबल रेनबो का एक्सप्लेनेशन लैब में एक लैब बनाई थी, उन्होंने किया था। तो ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो कि मतलब जिसका जितना कंट्रीब्यूशन पॉसिबल है वो तो वही कर सकता है, हर आदमी हर चीज नहीं कर सकता। अपना ये ख्याल। एक ऐलान है, एक बात कहूँगा, मैं एक बात कहूँगा। देखिए, मैं अंजुमन फरोग साइंस के ग्रुप के तमाम मेंबरान से एक छोटी सी इल्तिजा करना चाहता हूँ। मैंने ग्रुप में भी ये बात लिखी है कि मेरी अपनी किताब जितनी कापियाँ मेरे पास मौजूद है, हम बज़्म के तमाम अहबाब को तोहफ़तन पेश करना चाहते हैं। तो इसलिए मेरे व्हाट्सएप पर आप तमाम अहबाब अपना मुकम्मल एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ भेज दें। जितनी भी किताबें हमारे पास मौजूद हैं, जितनी कापियाँ, मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात के पास सिर्फ दुआ हासिल करने के लिए मैं बजरिया डाक अपने खर्च पर मैं आप हज़रात के खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। मैं आपके घर ही रहा हूँ। मैं इस वक्त कांकीनारा में हूँ, तो डाक खर्च का मामला नहीं आएगा, मैं बराह रास्त आकर ले लूँ। बाबू तुम तो एकदम मेरे घर में चाय पी के मेरी किताब हासिल कर सकते हो। मैं आज ही शाम को आया हूँ कांकीनारा, 2 दिन रहूंगा। बाबू तो अच्छा ठीक है, फिर ऐसा मुनासिब तुम जो अगर आ सकता तो मैंने मेरी जिम्मेदारी है कि कमाल के पास मैं भेज दूंगा निहाल। परसों कलकत्ते वापसी है, लेकिन मैं खुद आ जाऊंगा आपसे मिलने। आपसे मुलाकात भी बहुत अच्छा हुआ। नहीं इस्तकबाल रहेगा। मरहबा जी। अब्दुल वदूद अंसारी साहब, आपके इस जज्बे को सलाम। आपने जिस मोहब्बत, खुलूस का और फराग दिली का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके जज्बे के लिए। मैं सदर मोहतरम डॉक्टर अजहर साहब से गुजारिश करूंगा कि अपना सदारती कंक्लूजन पेश करें। और अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आपने जो है एक साइंस के तालिब इल्म को सदर बना दिया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहतरम जनाब अब्दुल वदूद अंसारी साहब एक कोहना मश्क अदब इत्फाल के मुसन्निफ हैं। मैं इनके ताल्लुक से क्या कहूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स जो है जिसमें उनकी खिताबत के भी कुछ पॉइंट्स हैं, नुकात हैं, और कुछ सवालात भी जो किए गए हैं उस ताल्लुक से भी एक दो लफ्ज़ कह दूंगा, तो अगर आप सब इजाज़त दें। अदब इत्फाल में साइंस का मौजू बहुत कम देखने में आता है और बहुत ही गिने चुने मुसन्निफीन हैं। इसमें नसरी सनफ तो है, शेरी सनफ की कमी है। अदबियात को साइंस से अलग नहीं किया जा सकता। मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि एक साइंसदान न सिर्फ साइंस में जो है अच्छा खासा इल्म हासिल रखता है, बल्कि वो अदबी एतबार से भी बहुत आला होता है। वो एक अच्छा शायर भी हो सकता है, एक अच्छा मुसन्निफ भी हो सकता है। ये खास बात है। आप इब्न सीना को ही ले लें, वो तो अगर इस वक्त होते तो कोई 5-6 नोबेल प्राइज तो मिल जाते उनको। और बेहतरीन मुसन्निफ, जब उनसे कहा जाता किसी मसले के ताल्लुक से तो कई 100 पेजेस लिख कर दे देते थे। वैसी उनकी दीनी उलूम में भी उनकी सलाहियत बहुत ज्यादा थी, और फिर शायर भी थे अच्छे अरबी के। और उन्होंने अल-लिसानुल अरबिया लुगत लिखी, यानी ग्रामर लिखी, क़वायद जो है। तो लिखना पढ़ना बहुत अहम है। अब लोग प्रैक्टिकल की भी बात कर रहे थे, मैं उसका भी जो है आपको जवाब दूंगा।
जहां तक अदब इत्फाल है वो आसान सनफ नहीं है। पहली बात आपको याद रखना होगा कि जिन बच्चों को के लिए आप लिख रहे हैं उनकी नफ्सियात से वाकिफ होना पड़ेगा, वो किस हद तक समझ सकते हैं, उस हद में रहकर अलाइन द सब्जेक्ट टू देयर मेंटल स्टेटस, उनके जहन तक लाकर समझाना होगा। दूसरी बात, साइंस के उलूम से वाकिफ तो जाहिर है जरूरी है, तो उसको किस तरह से पेश किया जाए। और मैं तमाम साइंसी अदब इत्फाल के जो भी मुसन्निफीन हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जब बच्चे उनकी इन किताबों को पढ़ रहे हैं, उनकी कहानियों को पढ़ रहे हैं, उनके ड्रामों को पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो कामयाब हो गए हैं अपनी तसनीफ में। तो इस लिहाज से मैं जनाब अब्दुल वदूद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब उन्होंने जैसे साइंसी खुतूत नवेसी, एक अजब अंदाज है। देखिए, उन्होंने साइंसी चिट्ठी के नाम से जो कहा, यानी मैं बहुत मुतासिर हूँ उनसे और हुआ हूँ। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक साहब फरमा रहे थे, और आई थिंक कोई और साहिबा ने भी एक सवाल किया था कि साइंस अमली तौर पर सिखाना चाहिए। आई बिलीव इन दैट। मैं उसमें जो है मैं खुद भी जो है एजुकेशनिस्ट कह लीजिए या कुछ थोड़ा बहुत इल्म है मुझे। तो आजकल जो हमें कहा जा रहा है कि जिसको कहते हैं हैंड्स ऑन इंक्वायरी बेस्ड मेथोडोलॉजी, करके सीखने की सलाहियत, और ये साइंस में बदर्जे उत्तम होती है। और बच्चे पैदाइशी साइंटिस्ट होते हैं, साइंसदान होते हैं। तो आप वीडियो बता देने से किसी तितली, बटरफ्लाई, हाँ शक्ल से बेहतर वीडियो है, लेकिन जब बच्चा खुद देखता है, खुद करता है, जैसे बटरफ्लाई की साइकिल है, आप जो है चंद पत्ते ला कर रखिए जिसमें बटरफ्लाई के अंडे हैं, और जो है रोजाना क्लास में कहिए कि बच्चों को कि भाई रोजाना मुआयना करते जाइए आप इसका, और देखिए इसमें क्या क्या तब्दीली होती है, और उसको लिखते चले जाए। आप तस्नीफ को अलग नहीं कर सकते प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से, अमली इसको। तो बच्चे खुद ब खुद लिखना जानेंगे, आप उनको डांटिए मत अगर गलती करें। अगर वो कोई चीज इमला में गलती हो डांटिए मत, उनको जो है उनको एनकरेज करके भाई इसका यहाँ पंक्चुएशन होना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है इसको आप इस तरह से लिखें तो ये बेहतर है। तो इसलिए अब स्टेम, रियाज साहब शायद दुबई से फरमा रहे थे स्टेम के ताल्लुक से, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब वो स्टेम जाकर पहले स्टीम हुआ, अब स्ट्रीम हुआ, और इसका मेरे पास इस पर मेरे कई वेबिनार्स हैं, और इंशाल्लाह अगर डॉक्टर शम साहब जो है मुझे इजाजत दें तो आइंदा मुस्तकबल में इस पर तफसीली जो है मैं कुछ कह सकता हूँ। और इंशाल्लाह, शुक्रिया। और स्टेम जो है प्रेसिडेंट ओबामा ने शुरू किया था, क्योंकि बच्चे साइंस की तरफ नहीं जा रहे थे, तो उन्होंने स्टेम शुरू किया, लेकिन बाद में उनको उसमें तब्दीलियां करनी पड़ी। तो मैं उसका एक जायजा आपको पेश करूंगा इंशाल्लाह, और इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। अच्छा, उसके लिए उन्होंने स्टेम की वजह से NGSS आया, नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड। अभी अमेरिका में ये कोशिश की जा रही है, और बहुत सारे स्टेट, तकरीबन ऑल स्टेट्स हैव अडॉप्टेड दिस NGSS, नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड। और इस पर भी मेरे 3-4 वेबिनार्स होंगे इंशाल्लाह। अगर तो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, क्या कोशिशें हो रही हैं यहाँ पर। मैं इस ताल्लुक से हमेशा 10 साल से कोशिश कर रहा हूँ इंडिया में, मगर वो लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो ला लिए हैं, लेकिन उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ से वो प्रोफेसर्स लाएंगे, कहाँ से वो टीचर्स लाएंगे जो असातिज़ा को
नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड सिखाएंगे। तो ये तमाम मसाइल हैं। तो यहाँ पर मैं और एक बात जो डॉक्टर उमर बिन हसन साहब, शायद ये वही साहब है जो ब्लैक शीप कह रहे थे अपने आप को। जी जी तो जी। नहीं, मैं महसूस होता हूँ उनसे। You know, we need black sheep too. So अल्हम्दुलिल्लाह। तो you know, मेरी गुजारिश है कि आप तमाम को कि आप लिटरेचर को, अदब को साइंस से अलग मत करिए। अदब, जब बच्चों में साइंसी कहानियां पढ़ने के बाद जो शऊर आएगा उनको साइंसदान बनाएगा। लिखने पढ़ने से उनका ज़ौक़ बढ़ेगा। आप जब साइंटिस्ट होते हैं तो कम्युनिकेशन एस्पेक्ट जो है, मुरासलत जरूरी होती है। वो मुरासलत अदब से आती है, यानी आपके लिटरेचर से आती है। और हम हमेशा यहाँ कहते हैं कि साइंस हेल्प्स इन लिटरेरी एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये तमाम चीज़ें जो है, मैं फिर से जो है तमाम मुसन्निफ़ीन जो अदब इत्फ़ाल से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहतरमा फातिमा साहिबा भी शायद वो भी अदब इत्फ़ाल से हैं, और इनको तो मैं जानता हूँ, डॉक्टर शाहताज साहिबा को, और सुम्मे अहम शमसुल इस्लाम साहब हैं, डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब, और जनाब वदूद साहब, अब्दुल वदूद साहब अंसारी साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से आप खिदमत करते रहे बच्चों की। बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, हमारा मुस्तकबल हैं, हम उनके मेमार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वापिस शमसा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अता साहब। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और बहुत ही कारआमद और बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही। और इंशाअल्लाह आइंदा फिर किसी से गुजारिश करेंगे और हम लोग मिलते हैं फिर आइंदा किसी इतवार को, यही 8 बजे वक्त होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।